Well, so good morning. Good morning to all of you. Does Harsika want to say something? Isika, why have you raised your hand? Isika, do you want to say something? By mistake. Okay, no problem. Well, beta, so today we are going to start chapter number 11 of Beehive. That is, If I Were You. What is the name of the chapter? If I Were You. Do you understand the meaning of this statement? If I were you, what does the title want to refer to? What does it suggest? If I were you, what do you understand by this statement? If I were you, this is the statement that has been based on conditional state. If I were you, it means अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. If I were you means अगर मैं तुम्हारी जगह. Did you understand? This is actually a drama. Will anyone tell me who is the writer of this story, of this drama? Douglas James. Yes, he is the writer. This is a drama. Or in this drama, we will see that the main character, whose name is Gerard, he lives actually alone in a lonely cottage. वो अकेले एक सुनसान कॉटेज में रहता है. And one day, and he does not meet many persons, and a very few persons know him. And this fact is known to an intruder who is a criminal also. One day, this intruder, this criminal, enters his cottage with an intention to take on his identity. एक दिन ये इंट्रूडर जो है इनके घर में घुस जाता है चुपके से. He is a criminal also. He has done, he has committed some crimes. Now he wants to escape from law, and that is why he wants to take on the identity of Gerard. अब वो अपनी पहचान मिटा करके जेराड की पहचान लेना चाहता है और आगे का जीवन वो जेराड के नाम से ही जीना चाहता है. तो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस स्टोरी. डिड यू अंडरस्टैंड? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. I said in this story the main character is Gerard. The main character is here Gerard. He is a person who lives alone in a lonely cottage and he does not meet many persons. Means he lives within a bound, and that is known to a criminal who has committed some crimes, but he wants to escape from the punishment. He wants to escape from law, and this is why, that is why he wants to take on identity of Gerard. वो अपनी पहचान मिटाना चाहता है और जेराड की पहचान को लेकर आगे का जीवन जीना चाहता है, यानी कि जेराड की जगह वो लेना चाहता है. तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि ही हैज टू मर्डर जेराड. जेराड को वो मार देगा और उसके जगह पे खुद ही वो जेराड बन जाएगा. तो जो भी क्राइम उसने किया है, जिस व्यक्ति ने किया है, वो कभी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि वो तो खुद ही है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को वो खत्म कर देगा. एंड ही विल लिव विद द न्यू आइडेंटिटी, दैट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ जेराज. डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ कहना? डिस्टर्ब नहीं करें. बच्ची की शादी 2 तारीख को. अच्छा आप ये हाँ. अच्छा. बहुत होगा. चाहिए जी.
बहुत बहुत बधाई हो। नो नो। हाँ बेटा, so I hope all of you have understood the theme of the story. In this story, we come to know first of all, actually, it is a drama. So, on the stage, the location which has been seen here, so we find there is a lonely cottage and there is an entrance back right and another door to the left must be a practical door. The furniture which has been arranged there, they are very simple and consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan also. And there is a telephone. When the curtain rises, we find that Gerard is standing by the table and making a phone call. जब पर्दा हटता है तो हम लोग देखते हैं कि जेरार्ड वहां पे खड़ा है और किसी से फोन पे वो बात कर रहा है. He speaks. Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still be here, but you must not count on that in about 10 minutes time. Right. Oh, goodbye. So he's talking to someone on the phone and he says that कि उस व्यक्ति को फोन करने के लिए कहो, मुझे बिल्कुल मालूम होना चाहिए और वो उम्मीद करता है कि वो यहीं पे रहेगा, परंतु उस पे इस बात पे ज्यादा डिपेंड ना करें. ओके, आफ्टर 10 minutes. So these statements are difficult to understand because he is talking to someone and what is the context in which he is talking, we people are not aware. So this is not very important part. But the matter is that when he was talking to the phone with someone, at the same time, when he puts the phone and goes to the divan to the left, where there is a traveling bag, and starts packing. So here we come to know that he is going out of the house क्योंकि उसने पैकिंग वगैरह कर लिया. And he is thus engaged. Another man similar in build to Gerard enters from the right silent. लेकिन ठीक उसी समय बिल्कुल जेरार्ड की तरह दिखने वाला व्यक्ति, उसी की कद काठी का है, बहुत हद तक उससे मिलता जुलता है, वो चुपके से अंदर इन कर जाता, वेरी साइलेंटली. ही हैड अ रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी है. ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, उसने एक टोपी पहन रखी है, ओवरकोट पहन रखा है. And he bumps accidentally against the table, and at the sound Gerard turns quickly. So he was actually entering very stealthily, very silently, but there was a table from which he collides. वो उससे टकरा जाता है एंड अ बम्प साउंड होता है जिससे कि जेरार्ड जो है उसका ध्यान उधर चला जाता है. तो नाउ जेरार्ड हैज सीन दिस person who has entered as an intruder in his house. Intruder, you understand? Intruder का मतलब समझते हैं ना आप? हाँ, one who enters stealthily or forcefully, he is called intruder. So when Gerard sees this man, he asks, "Why? This is a surprise, Mister." Intruder says, "Yes, I am glad you are pleased to see me." Intruder कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर खुश, but I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. पर ज्यादा देर तक तुम खुश नहीं रहो और अपने हाथ ऊपर उठा लो, पंजों को ऊपर करो. जेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल. जेरार्ड कहता है यह सब बड़ा ही नाटक की तरह लग रहा. इंट्रूडर से ट्राइंग टू बी काम, शांत रहो और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. जेरार्ड सेज, नॉन कैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक. नॉन कैलेंट मीन्स केयरलेस, not interested. Intruder says, "Thanks a lot. You will soon stop being smart." Intruder is realizing that Gerard is trying to be over smart and
making him realize that he is not feared at all, but actually he would be fearing. ऐसा इंट्रूडर को लगता है कि जेरार्ड थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और दिखाना चाहता है कि उसको देख के वो डर नहीं रहा, लेकिन वो डर तो रहा ही होगा, ऐसा वो सोचता है। आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीजों को जानना चाहता हूँ और तुम्हें वो बताना होगा। जेरार्ड सेज एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर। वो कहता है तुम जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। फिर जयराट कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना, लेकिन पहले मेरा पोजीशन तो ठीक करो, तुम तो आराम से खड़े हो, मुझे इस पोजीशन पे तुमने दे दिया है, मुझे परेशानी हो रही। देन intruder says to him to sit down there and no funny business. No funny business means what? कोई मजाक नहीं, means be serious. तो इंट्रूडर उसको कहता है ठीक है तुम बैठ जाओ, मगर मजाक बिल्कुल नहीं। Gerard says, at last, a sympathetic audience, I will tell you the story of my life. How, as a child, I was stolen by the gypsies, and why, at the age of 32, I find myself in my lonely Essex cottage. How? So, here Gerard tells his story to the intruder. वो अपने बारे में बताने लगता है कि उसकी कहानी जो है वो बहुत खास नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही सिंपैथेटिक है। क्यों? बिकॉज जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसे जिप्सी वालों ने चुरा लिया था। डू यू नो जिप्सी? जिप्सी का मतलब समझते हैं आप? जिप्सी किनको कहा जाता है? Is my voice audible? All of you are listening to me? Are you listening to me or not? So this is my question. Do you understand the meaning of gypsy? Yes, gypsies are those persons who travel one place to another place. They don't live anywhere permanently like we people. They are called gypsies. In Hindi, they are called khana bados. वो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते। So he says that he said that he had been stolen by gypsies when he was a child. बच्चा, जब वो बच्चा था तो उसको खाना बदोश लोगों ने चुरा लिया। And now when he is at the age of 32, अब वो 32 years एज का हो चुका है, तो he lives in a lonely cottage, एसेक्स कॉटेज। तो वो बिल्कुल ही सुनसान इलाके में इस कॉटेज में रहता है। इस एरिया का नाम एसेक्स है, एसेक्स। क्यों ऐसे रहता है? वाई डू यू नॉट लिव इन अ सोसाइटी? वो सोसाइटी में क्यों नहीं रहता, यहाँ सुनसान इलाके में क्यों रहता? इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। वो कहता अपनी कहानी अपने पास ही रखो, एंड यू जस्ट आंसर ओनली माई क्वेश्चन, मैं जो पूछता हूँ तुम सिर्फ उसका जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्यों? वेल डू यू, क्यों अकेले रहते हो बताओ? तो जेरार्ड सेज दैट ही इज सॉरी, he thought that he would be telling him, not asking him. वो कहता है मुझे माफ करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मुझे बता रहे हैं। A question of inflection, your voice is unfamiliar. Intruder, do you live here alone? फिर वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जेरार्ड, and if I don't answer, अगर मैं जवाब ना दूं तो? Intruder says, you have got enough sense not to want to get hurt. तुम इतने तो समझदार हो गए ही कि अपने आप को हानि करवाना नहीं चाहो। बिकॉज ही हैज अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, तो ही जस्ट थ्रेटनिंग हिम,
If he tries to become smart, he will be hurt. Gerard says that he thinks good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, mister? Intruder says, never mind my name. Again and again he says to him, Mister, and after that he does not know name, so he does not say anything. And intruder realizes that Gerard wants to know his name, but he says that don't think about the name of the intruder. वो कहता है कि मेरे नाम की चिंता मत करो. I like yours better. मुझे तुम्हारा नाम पसंद है, मिस्टर जेरार्ड. What are your Christian names? Christian names. अब क्रिश्चियन नेम्स का मतलब क्या हो? क्रिश्चियन नेम का मतलब तुम्हारा पूरा नेम. जेरार्ड, विंसेंट, चार्ल्स. इंट्रूडर, डू यू रन ए कार? इंट्रूडर जानना चाहता है कि क्या वो कार चलाता है. जेरार्ड सेज नो. इंट्रूडर सेज दैट इट इज ए लाई बिकॉज ही नोज वेरी वेल ही कैन ड्राइव ए कार. इंट्रूडर कहता है तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम कार चलाना जानते हो, मुझे मालूम है. एंड कीप इट इन योर माइंड, यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल. और दिमाग में ये बात रखो कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिससे तुम बात कर रहे हो वो कोई मूर्ख नहीं है. आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन ए कार. बेटर बी केयरफुल वाइज गाय. तुम जितना स्मार्ट हो मैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ, उससे भी ज्यादा. और मुझे मालूम है कि तुम कार चलाना जानते हो, तो इसलिए जब मेरे सवालों का जवाब दो सावधानी से दो, बाकी तो तुम समझदार हो ही. जेरार्ड सेज, और जेरार्ड आस्क्ड हिम if he was an American or is that merely a clever imitation. उसको कहता है कि क्या वो अमेरिकन है या फिर अमेरिकन होने की नकल कर रहा है. उसके बोलने के तरीके से जेरार्ड जो है कंक्लूड करता है कि ये शायद अमेरिकन है. Intruder says, listen, this gun is not toy. Intruder is realizing that Gerard is fearing not at all. And he is trying to make him fool. He is trying to being smart before him. So he shows his gun and tells him it is not a toy. वो अपनी गन दिखाते हुए कहता है इसको तुम शायद खिलौना समझ रहे हो. I can hurt you without killing you and still get my answer. मैं तुम्हें बिना जान से मारे भी हट कर सकता और अपने सवालों का जवाब पा सकता. Gerard says, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it is in the garage round the. जेरार्ड कहता है ठीक है, बिल्कुल सही, तुम इसको रख दो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे खुशी होगी. सच बात है, मेरे पास में एक कार है जो मेरे गैरेज में खड़ी है. इंट्रूडर सेज, दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? वो कहता है हाँ, अब तुम सही जवाब दे. अच्छा ये बताओ कि क्या तुमसे लोग यहाँ मिलने आते? जेरार्ड रिप्लाइज, वेरी रेयरली, यानी बहुत कम. सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट. There is the baker and the greengrocer, of course, and then there is the milkman, quite charming, but no one so interesting as yours. तो जेरार्ड बताता है कि बहुत ही कम लोग उससे मिलने आते हैं और कुछ लोग जो आते हैं उससे मिलने के लिए वो तो या तो बेकर होते हैं या ग्रीन ग्रोसर होता है या मिल्कमैन होता है, दूध वाला होता है, यानी कि जो रोजमर्रा के लोग हैं वही आते हैं. लेकिन उनमें से कोई भी उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि इंट्रूडर. Then intruder says, I happen to know that you never see trades people. Then intruder बताता है उसको कि मुझे मालूम चला है, इंट्रूडर को मालूम चला है कि वो व्यापारी लोगों से मेल जोल नहीं रखता, उससे मिलता जुलता नहीं. Gerard says, you seem to have taken a considerable amount of trouble. जेरार्ड को लगता है कि इसने उसके बारे में काफी जानकारी हासिल कर रखी है, तो उससे कहता है कि लगता है तुमने मेरे बारे में काफी जानकारी हासिल की, काफी कष्ट उठाया है. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? Intruder says, I could tell you plenty. मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता.
यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। तुम्हें लग रहा है कि तुम स्मार्ट हो, मैं क्यों, मैं तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट इज हाउ आई हैव गॉट वेयर आई। मेरे पास दिमाग है और मैं उसका सही सही इस्तेमाल करता हूँ, और इसीलिए मैं उस जगह पे हूँ जहाँ मैं हूँ। तुम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। Gerard said, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little। तो जेराड कहता, आप किस जगह पे हैं भाई? आप तो मेरे छोटे से कॉटेज में हैं, और यहाँ पे पहुंचने के लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ तो कोई भी आ सकता है। ये बिल्कुल लोनली कॉटेज है, और इसका कोई बहुत मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है। तो इफ एनीवन वांट्स टू कम, he can come, no problem। Then intruder says, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise। इंट्रूडर कहता है, अभी तो तुम्हारे होश ठिकाने आने वाले। जब तुम्हें मालूम चलेगा कि क्यों मैं तुम्हारे घर में घुसा हूँ, तुम्हारे कॉटेज में आया हूँ, तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओ। और जाहिर सी बात है, प्लीजेंट तो नहीं होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। Then Gerard said, with you figuring so largely in it, that is understandable। जेराड कहता है कि जिस तरह से आप बात को इतना बड़ी भूमिका बना रहे हैं, ये बात वाकई में समझने लायक। आखिर क्या मैटर? बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, और आर यू नॉट ए स्पेशलिस्ट? खैर, अब आप ये बताएं कि आप क्राइम के किस तरह के अपराध आप करते हैं, किस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं आप, और आप किसी क्राइम में स्पेशलिस्ट हैं क्या? मिस जेरार्ड इतना तो समझ ही चुका है कि वो कोई क्रिमिनल है, तो किस तरह के क्राइम में वो है, रॉबरी है, क्या है, बहुत तरह के क्राइम है, तो उससे जानना चाहता है। इंट्रूडर सेज दैट हिज स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी। वो अपनी स्पेशलिटी बताता है, वो कहता है कि उसकी स्पेशलिटी जो है वो ज्वेल रॉबरी में। एंड योर कार विल डू मी ए ट्रीट, इट इज सर्टेनली ए डैंडी बस। वो कहता है कि तुम्हारी कार जो है वो मेरे बड़े काम आ सकती है, और मैं इसको ले लूंगा। Gerard says, I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex। Then Gerard कहता है कि तब वो यहाँ क्या कर रहा है? ये एसेक्स के जंगल में उसको कोई ज्वेलरी थोड़ी ना मिलने वाली। Why he has come here? Intruder says, so are the cops। I can retire here nicely for a little while। एसेक्स के जंगल में वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पुलिस का कोई डर नहीं है, यहाँ सिपाही नहीं आता, और ये वहाँ पे आराम कर सकता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। कोई पुलिस का यहाँ पे झमेला उसको नहीं मिलेगा। जेराल्ड, ओ यू मीन टू लिव विद मी, इसका मतलब तुम मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आए हो? अ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव गॉट बीन इनवाइटेड। आप अचानक आ गए, इस तरह से आ गए, कोई बात नहीं। चलिए, मैंने आपको निमंत्रित तो नहीं किया है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं। Then intruder says, you won't be here long, so I didn't travel to ask। इंट्रूडर कहता है कि मैं रहूंगा मगर तुम नहीं रहोगे ज्यादा समय, और इसीलिए मैंने तुमसे पूछना उचित नहीं समझा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो इंट्रूडर सेज टू हिम दैट जेरार्ड विल नॉट बी लिविंग विद हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पा रहे हैं। देन जेरार्ड सेज, व्हाट डू यू मीन? ऐसा कहने का क्या मतलब है? इंट्रूडर सेज, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं तुम्हें किल करने आया हूं, मैं तुम्हारा मर्डर करने आया हूं। जेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो बहुत ही क्रूरतापूर्ण है, बहुत ही हार्श है। ऐसा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे जान से ही मारने का सोच रहे हो? इंट्रूडर सेज, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे भी ये करने में अच्छा नहीं लगेगा। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, बट इट इज जस्ट गॉट टू बी डन। वो कहता है कि उसको उससे लगाव हो गया, इसलिए उसे ये काम करना ही पड़े, भले ही उसे अच्छा लगे या ना लगे, उसे मारना पड़े। जेरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स?
इट इज ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो जेरार्ड उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये हत्या जो है वो बहुत बड़ा क्राइम है, रॉबरी इतनी बड़ी क्राइम नहीं है, और जब वो पकड़ा जाएगा तो उसकी हालत बहुत खराब हो, तो उसको एक बार सोचना चाहिए। इंट्रूडर सेज आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। वो कहता है मैं इसे फन के लिए या शौक के लिए नहीं कर रहा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ। वो काफी समय से पुलिस से बचता आ रहा है, पुलिस उसकी पीछा उसका करते आ रही है। नाउ आई वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और उसके बाद वो कहता है ये भागने के चक्कर में उसने एक बार मर्डर कर दिया, हत्या में ही उसकी तलाशी चल रही है, उसकी खोजबीन चल रही है। तो वो कहता है कि अब वो उसको दो बार फांसी पर थोड़ी चढ़ा सकते, इसलिए उसको अब कोई डर नहीं है। जेरार्ड सेज बातें समझ में आ रही है? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू। तो intruder says to him that he is already involved in murder and police has been chasing. So if he is caught in the murder of Gerard, there is not a big problem for him because he was already involved and they people can't hang him twice. तो वो उसको दो बार फांसी पर थोड़ी लटकाए। अब वो एक मर्डर करे चार मर्डर करे, वो तो मर्डर में इन्वॉल्व है, इसलिए फांसी तो एक ही बार लगनी है, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। Then Gerard says, you are planning a gracious double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? जेराड कहता है बिल्कुल सही, वो तुम्हें दो बार फांसी पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकता। मान लिया कि इससे तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन इससे तुम्हें लाभ क्या होगा? ठीक है, लॉस तो नहीं होगा, लेकिन इससे तुम्हें प्रॉफिट क्या होगा, एडवांटेज क्या मिलेगा? देन इंट्रूडर सेज दैट ही विल हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। उसको लाभ ये मिलेगा कि उसको आजादी मिल जाएगी। वो कैसे भाई? तो ही सेज दैट ही इज अ पुअर हंटेड रैट एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। आई एम फ्री टू ग्लो प्लेसेस एंड डू नथिंग। अपराधी के रूप में वो चूहे की तरह यहाँ से वहां भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा करती रह रही है, उसका जीवन बिल्कुल हेल हो गया, इस जीवन से वो बिल्कुल उब चुका है। वो बार बार अपने आप को छिपाने के लिए यहाँ से वहां भागता फिर रहा है। इट इज टू मच इन हिज लाइफ, नाउ ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू इट। So he has made up his mind to take the identity of any other person. As far as Gerard is concerned, so he matches with the intruder. वो intruder से काफी मैच करता है, उसकी पर्सनालिटी और उसका बहुत कुछ। और जेरार्ड बहुत लोगों से मिलता जुलता भी नहीं है, तो इसलिए वो जेरार्ड को मारकर खुद जेरार्ड बन जाना चाहता है, और उसके बाद वो आजाद हो जाएगा, फिर पुलिस उसको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। Then thereafter he can eat well, he can sleep well, and he can go anywhere where he wants to go, and there will not be any fear of coming at the sight of a cop. किसी पुलिस के नजर में आने का उसको कोई डर भी नहीं रहा। So it is his compulsion to murder Gerard, otherwise he would be caught and his life will be hell in a jail. अगर वो उसका मर्डर नहीं करेगा तो उसको जेल में अपना जीवन बिताना पड़ेगा, जो बिल्कुल नरक के जैसा। Then Gerard said, "It most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier." देखो क्या कहता है कि अधिकांशतः ड्रामे में जो उसने देखा है, तो जो विलेन होते हैं इतने मूर्ख नहीं होते कि वो अपने ही मर्डर की प्लानिंग में इतना लेट कर दे, और जब वो लेट कर देता है तो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रूडर को कहता है कि ही इज फॉर्चुनेट, वो थोड़ा भाग्यशाली। इंट्रूडर सेज आई एम ओके, आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग। वो कहता है मेरे पास कारण है ऐसा करने का। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। अब मैं चार्ल्स जेरार्ड के रूप में अपना जीवन बिताऊं। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। मैं जान चुका हूं, और या मैं जानने आया हूं कि तुम्हारा और तरीका कैसा है, ताकि मैं तुम्हें कॉपी कर सकूं।
एंड नाउ आई नो तुम कैसे बात करते हो, कैसे चलते हो. दैट पोस्ट स्टफ कम्स इजी. दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग. एंड दैट इज नॉट ऑल. गेट अप ए मिनट. नाउ टेक अ लुक एट मी. वो कहता है कि वो उसको समझ चुका है और थोड़ा बहुत जो बाकी है वो समझ लेगा और बिल्कुल उसकी कॉपी करके वो जेरार्ड ही बन जाए. जेरार्ड कहता है यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेट. लेकिन जेरार्ड कहता है कि तुम उस तरह से नहीं रहे हो जिस तरह से मैं हूँ. क्योंकि जेरार्ड जो है थोड़ा पहनावे पे ज्यादा ध्यान देता है, काफी फिट फाट रहता है. Intruder says, no, well, that goes for you too. I have got only got to wear specs and I will be enough like you to get away with it. वो कहता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम जो है स्पेक्टेकल्स लगाते हो, वो अगर मैं लगा लूं तो मैं तुम्हारी तरह बहुत हद तक दिखूंगा. तो जयराल्ड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल. तुम्हारे कपड़ों का क्या, तुम्हारे कपड़े मेरी तरह नहीं, तुम इससे पकड़े जाओ. Intruder says, Dad will be all right, yours will be fit me fine. उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे सारे कपड़े मेरे ही तो होने वाले, फिर मैं आराम से पहन लूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है.